I hope my share screen is visible now. Yes. Okay. Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues. Hence, the A name drawn into public controversy. Never since it began has Alcoholics Anonymous been divided by a major controversial issue, nor has our fellowship ever publicly taken sides on any question in an embattled world. This, however, has been no earned virtue. It could almost be said that we were born with it, for, as one old-timer recently declared, practically never have I heard a heated religious, political, or reform argument among a members. So long as we don't argue these matters privately, it is a cinch we never shall publicly, as by some deep instinct, we A's have known from the very beginning that we must never, no matter what the provocation, publicly take sides in any fight, even a worthy one. All history affords all history affords us the spectacle of striving nations and groups finally torn asunder because they were designed for, or tempted into, controversy. Others fell apart because of sheer self-righteousness while trying to enforce upon the rest of mankind some millennium of their own specification. In our own times, we have seen millions die in political and economic wars, often spurred by religious or racial difference. We live in the imminent possibility of a fresh Holocaust to determine how men shall be governed and how the products of nature and toil shall be divided among them. That is the spiritual climate in which AA was born, and by God's grace has nevertheless flourished. Let us re-emphasize that this reluctance to fight one another on anybody else is not counted as some special virtue which makes us feel superior to other people. Nor does it mean that members of Alcoholics Anonymous, now restored as citizens of the world, are going to back away from their individual responsibilities to act as they see the right upon issues of our time. But when it comes to AA as a whole, that's quite a different matter. In this respect, we do not enter into public controversy because we know that our society will perish if it does. We conceive the survival and spread of Alcoholics Anonymous to be something of far great importance than the weight we could collectively throw back of any other cause. Since recovery from alcoholism is life itself to us, it is imperative that we preserve in full strength our means of survival. Over to you, Lucky ji. Thank you. थैंक यू चंदू। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों। आज हम ट्रेडिशन 10 के ऊपर चंदू ने भी ये पहले 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। ट्रेडिशन 10 कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बाहरी मुद्दों पर कोई मत नहीं होता या कोई राय नहीं होती, इसलिए ए का नाम कभी भी सार्वजनिक विवादों में नहीं आना चाहिए। बिल लिखता है कि अपनी शुरुआत से अब तक कभी भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी बड़े विवादास्पद मुद्दे से विभाजित नहीं हुआ है। न ही हमारी फेलोशिप ने कभी इस संघर्षपूर्ण दुनिया में किसी भी प्रश्न पर सार्वजनिक रूप से पक्ष लिया है। हालांकि यह कोई अर्जित सद्गुण नहीं था, यह तो लगभग कहा जा सकता है कि हम इसके साथ ही जन्मे थे, क्योंकि जैसे हाल ही में एक पुराने सदस्य ने कहा, मैंने शायद ही कभी ए सदस्यों के बीच धार्मिक, राजनीतिक या सुधार संबंधी गर्मागर्म बहस सुनी हो। जब तक हम निजी तौर पर इन बातों पर बहस नहीं करते, तो यह निश्चित है
कि हम सार्वजनिक रूप से भी कभी नहीं करेंगे। मानो किसी गहरे स्वभाववश हम ए के लोग शुरू से ही जानते थे कि हमें कभी भी, चाहे कितना भी उकसाया जाए, किसी भी लड़ाई में सार्वजनिक रूप से पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे वह लड़ाई योग्य ही क्यों न लगे। इतिहास हमें दिखाता है कि कैसे राष्ट्र और समूह अंततः टूटकर बिखर गए, क्योंकि ये विवाद के लिए बनाए गए थे या उसमें फंस गए थे। कुछ तो अपने धर्मांध अहंकार के कारण टूट गए, क्योंकि वह मानव जाति पर अपने कल्पित स्वर्ण युग को थोपने की कोशिश कर रहे थे। हमारे ही समय में हमने देखा है कि कैसे धार्मिक और नस्लीय भेदभाव से प्रेरित राजनैतिक और आर्थिक युद्धों में लाखों लोग मारे गए हैं। हम इस निरंतर संभावना में जीते हैं कि एक और नया महाविनाश हो सकता है, यह तय करने के लिए कि मनुष्य पर शासन कैसे होगा और प्रकृति तथा श्रम के उत्पाद उनमें कैसे बांटे जाएंगे। इसी आध्यात्मिक वातावरण में ए का जन्म हुआ और ईश्वर की कृपा से यह फल फिर भी फलता फूलता रहा। हम फिर से जोर देते हैं कि एक दूसरे से या किसी और से लड़ने की हमारी अनिच्छा कोई विशेष गुण नहीं है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराए। और इसका यह अर्थ भी नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य जो अब दुनिया के नागरिक के रूप में पुनः स्थापित हुए हैं, अपने व्यक्तिगत दायित्वों से पीछे हट जाएंगे और अपने समय के मुद्दों पर अपनी व्यक्तिगत समझ के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। इसका मतलब बिल ये समझा रहा है कि हम ए के पास ये बाहरी किसी चीज से लड़ने की या राय देने की जो हमारी अनिच्छा है, वो कोई विशेष गुण नहीं है। हमको बताते हुए कहता है कि ए के मेंबर जो रिकवरी के अंदर सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बोलता है बिल उनको, अब वो जागतिक सिटीजन हो गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, वो अपनी व्यक्तिगत समझ के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन जब बात संपूर्ण एक ही आती है तो मामला पूरी तरह अलग है। इस संदर्भ में हम सार्वजनिक विवाद में नहीं उतरते, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी सोसाइटी नष्ट हो जाएगी। हम मानते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बने रहना और फैलना किसी और उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से हमारा समर्थन देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी एक मुद्दे को अपना पूरा जान देके भी ए के सारे मेंबर्स लगा के भी जो हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा ए का टिका रहना महत्वपूर्ण है। क्योंकि शराब से मुक्ति के लिए हमारे लिए स्वयं जीवन है, शराब से मुक्ति हमारे लिए स्वयं जीवन है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हम अपने अस्तित्व के साधनों को पूरी शक्ति से सुरक्षित रखें। जैसे कि ये पढ़ने से, ट्रांसलेशन से स्पष्ट हो गया हमें कि हम बाहरी वाद विवाद में क्यों नहीं पढ़ते। इसमें बहुत सारे उदाहरण के तौर पे दिए गए हैं। जैसे हमारे से पहले एक वॉशिंगटोनियन सोसाइटी होती थी और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लाखों मेंबर हो गए थे। शराबी भी उसमें मेंबर होकर के शायद शराब से दूर रहने की वो नैतिक ताकत पा रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद अमेरिका में उस टाइम काले गोरे के ऊपर, काले मतलब रंग भेद के ऊपर बहुत विवाद चल रहा था। तो ऐसे में वॉशिंगटोनियन सोसाइटी, जो कि अभी लाखों की सभासदत्व हो गई थी, उन्होंने एक पक्ष ले लिया और वो पक्ष लेने के बाद वो जो काम कर रहे थे वो उसे भूल गए और उस विवाद में ऐसे फंसे कि विवाद तो चलता रहा लेकिन वॉशिंगटोनियन सोसाइटी टूट के बिखर गई। ऐसे ही
हमारे इतिहास में पहले के ट्रेडिशंस में बहुत बार शेयर हुआ होगा कि लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस की राय पूछते हैं, भाई शराब किसने पीनी चाहिए, किसने नहीं पीनी चाहिए, कौन बीमार है, और बहुत सारी चीजें ऐसे पूछते हैं लोग। लेकिन हमने इन अनुभवों के कारण, पास्ट में आए हुए अनुभवों के कारण, हमने यह नीति अपनाई कि बाहरी किसी विषय के ऊपर हम कभी भी अपना मत प्रदर्शित नहीं करेंगे, विद्रोह में भी नहीं करेंगे, ना ही हम उसको सपोर्ट में भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसको ध्यान में रखते हुए कई जगह पे लोग शुरू शुरू में कॉपीराइट का उल्लंघन कर देते थे एक ही किताबों का। तो ऐसे में भी बड़ी मुश्किल से हम कभी किसी पे कोर्ट केस डालते, नहीं तो हम वो भी छोड़ देते। क्योंकि एक बार बड़े प्लेटफॉर्म के, समाज के प्लेटफॉर्म के ऊपर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की न्यूट्रलिटी और उसकी प्राइमरी पर्पस के चलने की इच्छा अगर बिगड़ती हुई दिखती है, तो जो जनता का विश्वास हमारे पे बना हुआ है वो टूट सकता है। खैर, जनता के विश्वास की बात नहीं करते यहाँ पे। हमारे लिए, जैसे लिखता है ना, क्योंकि शराब से मुक्ति हमारे लिए स्वयं जीवन है, तो हम सब जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर हैं, अगर ए रहेगी तो हम रहेंगे। और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे प्राइमरी पर्पस पे ही फोकस करना। इसलिए ये जो हमारी नीति थी, यह नीति ने आज तक लगभग 90 साल हो गए हैं। ट्रेडिशन आए को 80 के ऊपर साल हो गए हैं। और हमने जब ये नीतियां अपनाई तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने किसी भी कंट्रोवर्सी में जब भाग नहीं लिया, लोगों के उकसाने के बावजूद, पूछने के बावजूद, तो हमारी जो बनावट है वो टिकी रही। और ये डिस्ट्रैक्शंस जो आ जाते हैं इसके कारण, वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आए। हालांकि हम समूह में देखते हैं कई बार प्राइमरी पर्पस को छोड़ के और बहुत सारी चीजों के ऊपर से डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जहां ईगो क्लैश हो जाते हैं। क्योंकि वो समझ ऐसी होती है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, वो ज्यादा ठीक है। कोई बोलता है मैं बोल रहा हूँ बेहतरी के लिए है, हमें ऐसा करना चाहिए। खैर, हमारे जो ए के अंदर के वाद विवाद है, उसको हम कोई उसके पास उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। माइनॉरिटी ओपिनियन है, हमारे पास वोटिंग के, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी से लेके सब कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इसी वजह से हम समूह में भी बने रहते हैं, हम राष्ट्रीय लेवल पे भी बने रहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो एक न्यूट्रल और एक प्राइमरी सिंगलनेस ऑफ पर्पस की छवि है, उसको बरकरार रखते हैं। ओवर टू यू पुष्प। थैंक यू लकी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है, मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण। भूषण। तो चलो शुरुआत करते हैं इस ट्रेडिशन के लॉन्ग फॉर्म से। नो AA group or member should ever, in such a way as to implicate AA, express any opinion on outside controversial issues. इसका मतलब ये कि किसी भी AA के समूह ने या सदस्य ने कभी भी AA का नाम कोई भी बाहरी चीज के ओपिनियन में, या जहां पर भी मतभेद लोगों के हो सकते हैं, ऐसे में AA का नाम जोड़ना नहीं चाहिए। मतलब क्या? तो मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा कुछ विश्वास होगा, वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन वो AA का ओपिनियन करके कभी भी व्यक्त नहीं होना चाहिए, या AA समूह का ओपिनियन करके नहीं होना चाहिए। या जब भी मैं AA का प्रवक्ता करके कहीं पर खड़ा हूं, तो वहां पर AA का ओपिनियन करके मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन
करके मैंने कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए। खास तौर पर कहा तो पर्टिकुलरली दोज ऑफ पॉलिटिक्स, अल्कोहल रिफॉर्म और सेक्टेरियन रिलीजन, 3 चीजों के ऊपर मैंने अपना मत खास करके नहीं देना चाहिए। वो है किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स, शराब के बारे में, शराबबंदी या शराब को कंट्रोल करने के बारे में, या सेक्टेरियन रिलीजन, यानी कि अगर हम इतिहास को देखते हैं कि जैसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हुई थी, यानी वहां पर हमारे अर्ली मेंबर्स जो थे वहां से मिलना चालू हुए थे, और बाद में भी 1937-38 तक कई सारे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ में हमारे काफी मतलब उन्हीं के हम लोग सदस्य हुआ करते थे। तो बाकी जो सेक्ट हुआ करते थे कैथोलिक जैसे, मतलब क्रिश्चियनिटी में कई सारी सेक्ट्स यानी क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोग हमारे जातिवाद। यहाँ पर जाति होती है, जाति और उपजाति होती है, उसी प्रकार से जो उनकी भी जाति उपजाति होती है, अलग अलग विश्वास होते हैं, विश्वास प्रणाली होती है, तो उसके बारे में हम लोग कोई ओपिनियन नहीं देंगे। द अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप्स अपोज नो वन, तो AA के हमारे जो समूह है किसी के भी खिलाफ नहीं है। कंसर्निंग सच मैटर्स दे कैन एक्सप्रेस नो व्यूज वॉट एवर, ऐसे मामले में हम लोग कोई भी मत नहीं व्यक्त करते हैं। यानी BLW का ये हमारे सर्विस मैनुअल भी वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा समाज में जो झगड़े होते हैं वो होते हैं पॉलिटिक्स, रिलीजन और सोशल रिफॉर्म। तो ये जो चीजें हैं दुनिया भर इसको लेकर लोगों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, दुनिया भर लोगों के बीच में मतभेद होते रहते हैं, यहां तक कि उस वजह से राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुए हैं। तो आप तो जानते ही हो कि वर्ल्ड का हिस्ट्री है वो पहले क्रिश्चियनिटी का एक सुपीरियरिटी, फिर इस्लाम आया, उनके क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में के युद्ध, और फिर इस्लाम और हिंदूज के बीच में के हुए युद्ध। यानी उन दिनों में अगर हम देखते हैं कि पुराने जमाने में दुनिया भर में झगड़े होने के जो प्रमुख कारण थे वो कारण थे रिलीजन, क्योंकि अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताने का जो एक प्रयास हर एक धर्म करते आया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म के अनुयायी बनाने का प्रयास होते आया है। यह हमारे विश्व का इतिहास है, और इस वजह से सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड किलिंग जो कहते हैं, यानी लोगों का मारना या मौत हुई है। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स, आपने वो पार्श्वभूमि देखनी चाहिए कि जब भी हम लोग दूसरे महायुद्ध के आसपास के पीरियड की बात कर रहे हैं, कि आप जानते हो कि जर्मनी ने एक पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया था, और अलग अलग विचार प्रणाली थी, कम्युनिज्म था, डेमोक्रेसी था, सोशलिज्म था। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स थे, वो व्यू पॉइंट्स की वजह से लोगों के बीच में वितुष्टता, यानी पूरी दुनिया जो है वो बट गई थी। कुछ लोग जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले राष्ट्र थे, और कुछ लोग जो कैपिटलिस्ट या डेमोक्रेटिक पद्धति से जो विचारधारा थी उसको सपोर्ट में थे। तो पूरे विश्व के ऐसे 2 या 3 भाग हो गए थे। तो वो फेज के बारे में BLW कह रहा है कि वो हमारा पूरा समाज जो है वो इन आइडिया से डिवाइड हुआ है। और तीसरा जो कहते हैं कि रिफॉर्म, यहाँ पर हमने विशेष जिक्र किया है अल्कोहल रिफॉर्म का। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे ही शुरुआत के जो कुछ सदस्य थे, हमारे जो पायोनियर मेंबर्स थे, उनमें से कुछ लोगों के काफी उग्र मतवादी थे। यानी उनका कहना था कि शराब के ऊपर बंदी ही आना चाहिए,
या शराब को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, कम उम्र में शराब उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसे हमारे ही कुछ सदस्यों के मत हुआ करते थे। और नेचुरली जब वर्तमान पत्रों को कुछ भी शराब के ऊपर लिखना होता था तो वो एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ओपिनियन पूछने के लिए हमारे पास में आते थे। और हमारे जो खास करके थोड़े बहुत जो ज्यादा जानकार यानी जाने माने ऐसे सदस्य थे, इनके ओपिनियंस पूछे जाते थे। और इसमें भी हमारे अंदर भेदभाव था, क्योंकि कुछ लोगों का ओपिनियन था कि भाई हमने जिस शराब के ऊपर दिलो जान से प्यार किया है उसी के खिलाफ हम कैसे आज खड़े रह सकते हैं, हम लोग ये डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकते हैं। और कुछ लोगों का ओपिनियन था कि भाई जिनको पीना संभव है उनको पीने दो ना, उनका क्या तकलीफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, हम बीमार है, हमारा प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों का कहना था कि जो भी पिएगा उनमें से ही शराबी बनेंगे, अगर पीना ही बंद हो गया तो शराब का संबंध नहीं आएगा। और ये उस पार्श्वभूमि पे है जब ही अमेरिका में बहुत सारे प्रोहिबिशंस या शराब के बारे में, सोशल रिफॉर्म के बारे में बहुत सारी मूवमेंट चल रही थी। वर्तमान पत्रों में भी ऐसे विचार थे, खास करके जो चर्च हुआ करता था उनके भी उसके बारे में कुछ खास ठोस ऐसे मत थे। और वो चाहते थे कि हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को सपोर्ट किया है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने भी इस विचार प्रणाली को समर्थन देना चाहिए। तो ये सभी पार्श्वभूमि पर बीडब्ल्यू को दिखाई दे रहा था कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य है खुद शराब से दूर रहना और दूसरे पीड़ित शराबी को शराब से दूर होने में मदद करना। ये छोड़कर हम लोग अगर ये बाकी के मामलों में उलझने लगेंगे तो हमारे ही अंदर मतभेद होंगे। और ये लगभग हम लोग देख रहे हैं कि ये सिचुएशन है 1946 से 1950 के बीच में ये ट्रेडिशंस लिखी गई है। और उसके पीछे वाला जो बैकग्राउंड है कि जैसे आप जानते हो कि बिल ने जो ट्रेडिशंस के ऊपर की जो पहले आर्टिकल 12 पॉइंट्स टू सिक्योर आवर फ्यूचर करके जो आर्टिकल उन्होंने लिखा था, तो जुलाई 1944 में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था वॉशिंगटोनियन सोसाइटी के ऊपर, तो वो ग्रेपवाइन में जो पब्लिश हुआ आर्टिकल था, उस आर्टिकल को आधार बना के उन्होंने ये ट्रेडिशंस को लिखना शुरू कर दिया था। उनको रियलाइज हुआ था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को अगर धोखा है तो वो बाहर से नहीं है, वो अंदर से ही है। और अंदर धोखा होने लायक जो चीजें है वो चीजें ये अगर कोई प्रमुख चीजें हैं इनको अवॉइड करे तो बाकी की जो छोटी मोटी जो झगड़े हमारे एए के भीतर रहते, ऐसा नहीं है कि हमारे एए के भीतर झगड़े नहीं है, एए के भीतर भी हमारे बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी बातों पे, जैसे कि समूह का कार्य कैसा चलना चाहिए, किसको कौन सा जिम्मेदारी उठाना है, या कौन सा कार्यक्रम करना है या नहीं करना है, इस प्रकार के हमारे छोटे मोटे जो झगड़े हैं, बीडब्ल्यू कहता है ये जो हमारे झगड़े हैं ये बेसिकली हम लोग सभी मनमौजी और अपना ही सच करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को एक साथ में आकर जब भी काम करना हमको आदत नहीं है, तो वी आर हम लोग जब भी एक साथ में आते हैं और एक दूसरे की मदद से कुछ करना शुरू करते हैं, तो इसमें से जो उलझने वाले, यानी जब भी जैसे कहते हैं ना कि किचन में जब दो औरतें काम करेगी तो बर्तन को बर्तन लगना ही है, आवाज तो होना ही है। उसी प्रकार से अगर ईगो सेंट्रिक हमारे जैसे शराबी एक साथ में आकर भले एक के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे बीच में छोटे मोटे झगड़े होने ही है। लेकिन ये जो कोई भी एक के समूह में आप जाओ, आपको कभी भी कोई कैजुअली भी रिलीजन, पॉलिटिक्स या सोशल रिफॉर्म जैसे विषयों के ऊपर बात करते हुए हम नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें इंस्टिंक्टिवली पता होता है। ये देखो दोस्तों, ये जब भी ट्रेडिशन लिखी तभी लार्जली अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ अमेरिका में ही थी, लेकिन बाद में ये ट्रेडिशन का ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि जब ही एए का विश्व फैलने लगा
और सिर्फ कैथोलिक लोगों पे नहीं बल्कि बाकी धर्मों तक, यानी यहाँ तक कि जापान में या हमारे यहाँ पर इंडिया में या अफ्रीकन कंट्रीज में, ऐसे बाकी सारे रिलीजन्स और बाकी सारे देशों में जब भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का फैलना चालू हो गया, और जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी धर्म का जिक्र नहीं होता है, इस बात को देखकर हमारे यहाँ पर आने वाली सदस्यता भी अलग अलग धर्म की आती है। जैसे अगर आप एक आम AA समूह देखोगे तो उसमें आपको हर प्रकार के लोग दिखाई देंगे, और वो इसी वजह से वहां पर, अगर समझ लो कि एक AA के समूह में अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में चर्चा होने लगेगी तो नेचुरल है वहां पर झगड़े तो होने वाले हैं, क्योंकि लोगों के मत इसके बारे में, आप एक दोस्तों के बीच में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर चर्चा जब भी पॉलिटिक्स पे हो जाती है तो वहां झगड़े शुरुआत हो जाते हैं, या रिलीजन या ईश्वर या बिलीवर नॉन बिलीवर, इस मामले में भी जब भी चर्चा होने लगती है तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, और ये सभी यूनिटी को धोखा देने वाले सब्जेक्ट है, ये हम जानते हैं। और बिल कहता है कि हम लोग इंस्टिंक्टिवली इनको अवॉइड करते हैं, यानी हमारे अंदर से ही एक आवाज आती है कि भाई ये फालतू में जहां पर झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, ऐसे इश्यूज के ऊपर हमको बात करने की जरूरत क्या है। और वहां पर जैसे अभी लकी भाई ने कहा कि वॉशिंगटोनियन सोसाइटी का जो जिक्र किया था कि अर्ली 19th सेंचुरी में ये एक बहुत बढ़िया शराब से मुक्त करने की एक सोसाइटी बनी थी, जो बढ़ते बढ़ते इनकी सदस्यता 1 लाख तक पहुंच गई थी। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब ही कोई भी मीडिया नहीं था, उनको सपोर्ट नहीं था, और खाली एक जरूरत थी क्योंकि शराबियत बहुत बढ़ रही थी। और इनके बीच में 3 प्रमुख प्रॉब्लम्स जो हुए, उसमें से सबसे पहला प्रॉब्लम था उन दिनों ये जो काले लोग होते हैं, ब्लैक्स, इनके अधिकारों को लेकर अमेरिका में बहुत सारी अपहीवल्स चल रही थी, बहुत सारे मतभेद हो रहे थे। और वॉशिंगटोनियन सोसाइटी के जब भी मत पूछे गए तो कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए और वॉशिंगटोनियन सोसाइटी के भीतर ही झगड़े होने लगे। दूसरा महत्व का मुद्दा था उनके अंदर डिस्प्यूट का, वो था जो औरतों को वोटिंग देने का कि नहीं, इस बारे में उनका था, और वहां से उनके झगड़े हो गए। वो आपसी झगड़े इतने बढ़ गए कि वो वॉशिंगटोनियन सोसाइटी के ही टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो हर एक टुकड़ा जब भी उनकी यूनिटी टूट गई तो उनका अस्त हो गया। तो बिल डब्ल्यू ने ये कहानी जब भी पढ़ी और उन्होंने ये सिचुएशन को जब भी देखा समझा, तो उनको रियलाइज हुआ कि अगर हमने अपने आप को सही टाइम पे कुछ आध्यात्मिक तत्वों से नहीं बांधा तो हम भी शायद उसी तरीके से बहक सकते हैं। और इसीलिए ये ट्रेडिशन उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के बाहरी मुद्दे में हम लोग मत नहीं व्यक्त करेंगे, भले वो अच्छाई के लिए क्यों नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी आज भी हम लोग कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो 100% वहां के पत्रकार आपको सवाल पूछेंगे, तो आपका प्रोहिबिशन के बारे में क्या ओपिनियन है। तो ऐसे में खास तौर पर हम लोग ओपिनियन देना टालते हैं। वैसे ही वो पूछते हैं कि कितने प्रतिशत लोग शराब पीते हैं, आप कितने प्रतिशत महिलाओं में पीने का प्रमाण बढ़ चुका है, और हम लोग क्लियरली बोलते हैं कि हम लोग इस प्रकार का कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं रखते, हम कोई अभ्यास नहीं रखते हैं, और मर्दों में पीने का प्रमाण ज्यादा है कि औरतों में ज्यादा है, इस ऐसे कोई विषयों के ऊपर हमारा कोई मत ही नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मत है कि हम शराबी है और हमने शराब नहीं पीनी चाहिए, और ऐसे ही हमारे जैसा कोई पीड़ित होगा तो उसको हम मदद करने के लिए तैयार है। बाकी बाहरी किसी भी मुद्दे पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ऐसा कोई मत नहीं है। कई बार
ऐसा होता है। मतलब मैंने खुद अनुभव लिया है कि जब भी पत्रकार परिषद में हमारे साथ में डॉक्टर आशीष देशपांडे जैसे या कोई भी साइकेट्रिस्ट हो या कोई दूसरा क्लास के ट्रस्टी हो, इनको सवाल पूछा जाता है कि शराबी बनने के पीछे के बायोलॉजिकल रीजनिंग क्या है, कारण क्या हो सकते हैं वगैरह। तो ये लोग भी जब भी बोलते हैं तो बोलते समय पहले ये बताते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ऐसा इस विषय में कोई मत नहीं है। लेकिन एज अ डॉक्टर मैंने जो सीखा हुआ है वो मेरा ये मत है, लेकिन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मत नहीं है। तो हमेशा जब भी हमारे कुछ मित्र जब भी हमारे स्टेज पे से हमारे प्लेटफॉर्म से बात करते हैं तो वो भी क्लियरली इंडिकेट करते हैं मेरा मत क्या है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मत क्या है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई मत नहीं है, लेकिन एक आधा प्रोफेशनल होने की वजह से वो अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। तो कई बार खास करके जब भी कोई ये शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग का एक्सीडेंट होता है या पुलिस लोगों का कोई कार्रवाई होता है, ऐसे समय में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी पूछा जाता है, इनको भी बताया जाता है। लेकिन या अल्कोहल के बारे में कोई जजमेंट, कोर्ट में से कोई जजमेंट होता है या अल्कोहल के प्रोहिबिशन या कंट्रोल के बारे में कोई पॉलिसीज बनती है, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों को अगर वहां पर बुलाया जाता है तो हम लोग यही कहते हैं कि एक इंडिविजुअल सदस्य करके हम लोग मत दे सकते हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ऐसे मामले में कोई भी मत नहीं है। तो चलो आगे पढ़ते हैं, इसके आगे ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. Maybe this sounds as though the alcoholics in A had suddenly gone peaceable and became one great big happy family. Of course, this isn't so at all. Human beings that we are squabble. Before we leveled off a bit, A looked more like one prodigious squabble than anything else, at least on the surface. A corporation director who had just voted a complex expenditure of $100,000 would appear at an A business meeting and blow his top over an outlay of $25 worth of needed postage stamps. Disliking the attempt of some to manage a group, half its membership might angrily rush off to form another group more to their liking. Elders temporarily turned Pharisee have sulked. Bitter attacks have been directed against people suspected of mixed motive. Despite their din, our puny rose never did a particle of harm. They were just part. They were just part and parcel of learning to work and live together. Let it be noted too that they were almost always concerned with ways to make AA more effective, how to do most good for the most alcoholics. The Washingtonian Society, a movement among alcoholics which started in Baltimore a century ago, almost discovered the answers to alcoholism. At first, the society was composed entirely of alcoholics trying to help one another. The early members foresaw that they should dedicate themselves to this sole aim. In many respects, the Washingtonians are akin to AA of today. Their membership passed the 100,000 mark. Had they been left to themselves and they stuck to their one goal, they might have found the rest of the answer. But this didn't happen. Instead, the Washingtonians permitted politicians and reformers, both alcoholics and non-alcoholics, to use the society for their own purposes. Abolishing of slavery, for example, was a stormy political issue then. Soon, Washingtonian speakers violently and publicly took sides on this question. Maybe the society could have survived the abolition controversy, but it didn't have a chance from the moment it determined to reform America's drinking habits. When the Washingtonians became temperance crusaders, within a very few years,
they had completely lost their effectiveness in helping alcoholics. The lesson to be learned from the Washingtonians was not overlooked by Alcoholics Anonymous. As we surveyed the wreck of that movement, early AA members resolved to keep our society out of public controversy. Thus was laid the cornerstone of Tradition 10. Alcoholics Anonymous has no opinion on outside issues, hence the AA name ought never be drawn into public controversy. Thank you. ओके, सो लास्ट पैरा में हमने ये पढ़ा कि हम अपने अस्तित्व के साधनों को यानी कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को और सिंगलनेस से पर्पस को पूरी शक्ति से सुरक्षित रखेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि ए में मौजूद शराबी अचानक बहुत शांति प्रिय हो गए हैं, क्योंकि हम कहीं बाहर चीजों में मत व्यक्त नहीं करते, किसी विवाद में पड़ते नहीं है और उसका एक बड़ा खुशहाल परिवार बन गया है। बेशक ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इंसान हैं, हम झगड़ते हैं। थोड़ा स्थिर होने से पहले ए ऊपर ऊपर से किसी विशाल झगड़े जैसा ही दिखता है। जहाँ पे उदाहरण देता है कि एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर जो अभी अभी $1 लाख के खर्च पर वोट देकर आया हो, वो एक ही मीटिंग में पहुंचकर $25 के जरूरी डाक टिकटों के खर्च पर अपना आपा खो बैठता है। कुछ लोगों द्वारा समूह को चलाने की कोशिश नापसंद होने पर उसके आधे सदस्य गुस्से में वहां से निकल जाते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक एक नया समूह बना लेते हैं। कुछ बुजुर्ग सदस्य अस्थायी रूप से फारिसी बनकर यानी कि नाराज होकर बैठ जाते हैं। मिश्रित उद्देश्यों के संदेह में कुछ लोगों पर तीखे हमले किए जाते थे, यानी कि जो दोनों तरफ की बात करते हैं ऐसे लोगों पर, ए मेंबर्स में या अंदर की बात कर रहा बिल। इन सब शोर शराबे के बावजूद हमारे ये छोटे छोटे झगड़े ए को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये तो साथ मिलकर काम करना और साथ जीना सीखने का ही हिस्सा थे। तो बिल यहाँ पे बताता है हमारे जो आपसी विवाद होते हैं क्लोज मीटिंग्स में, हमारे जो मतभेद होते हैं खर्चों को लेकर और सारी चीजों को लेकर, वो सारी चीजें ए को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये झगड़े लगभग हमेशा इसी बात पर होते थे कि ए को और कैसे प्रभावी बनाया जाए। सबसे अधिक शराबियों के लिए सबसे अधिक भलाई कैसे की जाए। अगला पैरा वाशिंगटोनियन सोसाइटी का है, जो मैं पहले बोल गया था। वाशिंगटोनियन सोसाइटी एक आंदोलन जो 1 सदी पहले बाल्टीमोर में शराबियों के बीच शुरू हुआ था, उसने लगभग शराबीपन का उत्तर खोज ही चुकी थी। आरंभ में यह समाज पूरी तरह उन शराबियों से बना था जो एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। प्रारंभिक सदस्यों ने समझ लिया था कि उन्हें अपने आप को केवल इसी एक लक्ष्य को समर्पित करना चाहिए। कई मायनों में वाशिंगटोनियन सोसाइटी आज के ए के समान ही थे। उनकी सदस्यता 1 लाख से भी अधिक हो गई थी। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता और एकमात्र लक्ष्य पर टिके रहते तो शायद वे बाकी का उत्तर भी खोज लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय वाशिंगटोनियनों ने राजनीतिज्ञों और सुधारवादियों, शराबी और गैर शराबी दोनों ऐसे सदस्यों को इस समाज का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करने दिया। उदाहरण के लिए दास प्रथा यानी कि गुलामी का उन्मूलन उस समय का उग्र राजनीतिक मुद्दा था। जल्द ही वाशिंगटोनियन वक्ताओं ने इस प्रश्न पर हिंसक और सार्वजनिक रूप से एक पक्ष लेना शुरू कर दिया। हो सकता है कि समाज दास प्रथा विरोधी विवाद से बच जाता, वाशिंगटोनियन दास प्रथा विरोध करने विवाद से बच जाते, लेकिन जैसा ही उन्होंने अमेरिका की शराब पीने की आदतों को सुधारने का निश्चय किया, उसी क्षण से उनकी स्थिति खतरे में पड़ गई। जब वाशिंगटोनियन संयम अभियान यानी कि टेम्परेंस क्रूसेडर्स बन गए तो कुछ ही वर्षों में
वे शराबियों की मदद करने की अपनी प्रभावशीलता पूरी तरह खो बैठे। वॉशिंगटनियन से मिलने वाला सबक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नजर से नहीं छूटा। जब हमने उस आंदोलन के पतन को देखा तो प्रारंभिक ए सदस्यों ने यह निश्चय किया कि हमारी सोसाइटी को सार्वजनिक विवादों से दूर रखना होगा। इसी प्रकार परंपरा 10 की नींव रखी गई। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बाहरी मुद्दों पर कोई मत नहीं होगा, इसलिए ए का नाम कभी भी सार्वजनिक विवादों में नहीं आना चाहिए। ओवर टू यू भूषण। Yes. Bhushan, yeah. हाँ, नहीं वो शेयर चला गया। 1 मिनट। दिख रहा है क्या? अभी गया। दिख रहा था अभी दिख रहा था, अभी गया। हाँ, ओके, मुझे दिखने रहा था। यस। सो दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स को हमारा ऑलरेडी चर्चा करके हो चुका है, तो अभी मैं आपको ले चलता हूं थोड़े अगले मुद्दे की तरफ। हमारे जो ट्रेडिशन के चेकलिस्ट के सवाल है उनको हम लोग क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि ये जो भी विषय थे इसके बारे में ऑलरेडी हमारा चर्चा हो चुका है, बात करके हो चुका है। तो ट्रेडिशन चेकलिस्ट में कुछ सवाल है। उसका पहला सवाल यह है, डू आई एवर गिव द इंप्रेशन दैट देयर रियली इज an AA opinion on doctors, psychiatrists, churches, hospitals, jails, alcohol, prescribed medications, other drugs, other 12-step programs, vitamins, Al-Anon, the federal or state government, यानी कि जो भी विषय हमारे यहाँ पर चर्चा में आ सकते हैं वो सभी विषयों को यहाँ पर लिया गया है। तो जब भी मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ, जब भी नए सदस्य आके मेरे से पूछते हैं या कोई एए के हितचिंतक आते हैं और मुझे पूछते हैं कि भाई एए का ओपिनियन क्या है, ये साइकियाट्रिस्ट अच्छा है या वो साइकियाट्रिस्ट अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है या वो डॉक्टर, हमारा एक नैसर्गिक रूप से हमारे मन में आता है कि जो एए को सहकार्य करता है या जो अपने पेशेंटों को एए में भेजता है वो बेटर डॉक्टर है, ऐसा हम लोग बोलने की संभावना है। लेकिन एए का ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है। हम कोई प्रेफरेंस नहीं देते कि आप इस डॉक्टर के पास चले जाए या ये साइकेट्रिस्ट के पास जाने से आपको सही गाइडेंस मिलेगा, इस प्रकार का हम लोग कोई भी ओपिनियन नहीं देते। अगर ऐसा ओपिनियन मैंने दिया भी तो वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ओपिनियन नहीं है, इसका खास जिक्र हमें करना होगा। ये अपना वैयक्तिक ओपिनियन करके आप दे रहे होंगे, लेकिन यूजुअली आपको जब भी पूछा जाता है तो वैयक्तिक ओपिनियन करके पूछा नहीं जाता है। आप एक पदाधिकारी हो या सीनियर सदस्य हो, इसी हिसाब से आपको ये पूछा जाता है। तो इस समय खास विशेष तौर पर हमने ये देखना चाहिए कि हमने अभी खास करके हॉस्पिटल्स में या रिहैब सेंटर्स के बारे में पूछा जाता है कि भाई कौन सा रिहैब बेहतर है, या अगर डिटॉक्स के लिए भर्ती करना है तो कौन सी हॉस्पिटल में हम भर्ती करें। तो हमें अगर कोई पता है कि भाई एक अमुक अमुक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हमारे साथ ज्यादा फ्रेंडली है या अमुक अमुक रिहैब सेंटर्स में से ए में भेजा जाता है, तो अगर हम बोलते हैं कि नहीं हमारा ओपिनियन ये है कि आपने ये रिहैब में जाना चाहिए या ये हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, तो ये गलत होगा दोस्तों, ये ट्रेडिशन का वायलेशन होगा।
ये जेल्स का जो सवाल है वो इसलिए है क्योंकि शराबियों ने जो क्राइम करते हैं, मतलब शराब के नशे में हमारे हाथ से जो ये होती है, तो ऐसे लोगों को लीनियंसी देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो नशे में था, उसको समझ नहीं थी, तो उसको सजा देते समय उसको कम सजा देनी चाहिए, या अगर शराबी जेल में है तो जेल में एक ही मीटिंग चलती है, वो सुविधा ज्यादा बेहतर है, जहां पर सुविधा नहीं दी है वो खराब है। इस प्रकार के ओपिनियन हम लोग नहीं देते हैं। या शराब में भी कौन सी शराब अच्छी, कौन सी शराब बुरी, क्या हानिकारक, कौन सी कम हानिकारक, कौन सी ज्यादा हानिकारक, या अगर दवाई आपको दी गई है तो भले मैंने खुद ने खाई होगी लेकिन ये दवाई का फायदा नहीं होता, या ये दवाई का ज्यादा फायदा होता है, इस प्रकार के ओपिनियन जो है ये हम लोग बिल्कुल नहीं देते। खास करके और एक यहाँ पर दिया हुआ है दूसरे 12 स्टेप प्रोग्राम्स कि भाई नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में आपका क्या मत है, या निकोटीन एनोनिमस के बारे में आपका क्या मत है, या ओवर ईटर्स एनोनिमस, या कोई भी अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम है इनके बारे में आपका क्या मत है। तो हमारा कोई मत नहीं है। हम कोई भी मत किसी भी एए के बाह्य के विषय पे नहीं करते। यहाँ पर विशेष मेंशन किया है एल एनॉन का, क्योंकि एल एनॉन अस्तित्व में आया वो एए की वजह से। यह हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, हमारी पत्नियां, या जहां शराबी औरत हो तो उसके पतियों के लिए ये कार्यक्रम है। लेकिन इनके भी किस प्रकार से कार्य करता है या नहीं करता है या क्या, इसके ऊपर हमने कोई भी मत नहीं देना है। तो अगर कोई नया मेंबर आकर पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैंने अपने बीवी को एल एनॉन में भेजना चाहिए, तो मैं हाँ या ना बोलने से बेहतर मैं बोलूंगा कि जैसे आपने ये फेलोशिप को प्रयास एक ट्राई करके दिया, वैसे आप जो वो फेलोशिप को ट्राई कर दीजिए ना। मैं वहां का सदस्य नहीं हूं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो मैं आपको मत नहीं दे सकता। और एक आप प्रवक्ता करके तो मैं बिल्कुल ही मत नहीं दे सकता। तो ये पहला पॉइंट क्लियरली बताता है कि जहां हम लोग इनएडवर्टेंटली यानी बिना समझे, कभी कभी हमारा मत, हम बहुत समय से अगर ए में है तो हमारे मत हम बन जाते हैं और ये मत हम लोग देते हैं, लेकिन ये इस ट्रेडिशन का भंग होता है। पॉइंट नंबर दूसरा दिया है, कैन आई ऑनेस्टली शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कंसर्निंग एनी ऑफ दोज विदाउट गिविंग द इंप्रेशन दैट आई एम स्टेटिंग द ए ओपिनियन। यानी कि माय ओपिनियन एंड ए ओपिनियन, मेरा मत और ए का मत, इसके अंदर का जो अंतर है वो अंतर रखते हुए क्या मैं सचमुच अपना मत बता सकता हूं? तो ये इस हेतु पूछा गया है कि ये बहुत मुश्किल है या ना के बराबर है। जब भी मुझे पूछा जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मुझे पूछा क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं वहां ए का सदस्य करके ही हूं। मैं अगर आम जनता में हूं तो मेरे को कोई ओपिनियन नहीं पूछेगा। मेरे को ये मत पूछा ही जाता है क्योंकि मैं ए का चेहरा बन के गया हूं, या ए का आवाज बन के गया हूं, या मेरी तरफ देख के उनको ए नजर आती है, इसलिए वो मेरे को पूछते हैं। ऐसे समय पे मेरा ओपिनियन अलग है ये बोलना भी गलत होगा, क्योंकि सामने वाले को तो यही लगेगा कि यही ए का ओपिनियन है, लेकिन ये डिप्लोमेटिकली बताना चाहता है। तो माय ओपिनियन, मेरा मत और ए का मत, ये डिफरेंस समझना जानना ये बहुत मुश्किल होता है, और इसका हम ख्याल रखें। तो तीसरा जो सवाल है, व्हाट इन ए हिस्ट्री गेव राइट्स टू आवर 10th ट्रेडिशन। तो ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये 10वीं जो ये ट्रेडिशन है उसका कारण हुआ? तो उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे में से ही बहुत सारे मेंबर्स शुरुआत के दिनों में ए का नाम लेके बाकी चीजों को प्रमोट करते थे। जैसे कि शुरुआत के दिनों में ए ने हॉस्पिटल्स खोल के देखा, ए के ग्रुपों ने कुछ हॉस्पिटल्स खोली,
या डिटॉक्स सेंटर्स खोली या हाफवे होम्स खोली या क्लब हाउसेस खोली और हमने उनको एए का नाम दिया। फिर हमारे ही सदस्यों ने एए के टी शर्ट बनाए, एए के बॉल पेन्स बनाए, टोपियां बनाई, एए यानी हर चीज में एए की पॉपुलैरिटी का फायदा लेते हुए हम लोगों ने दूसरे हमारे जो संयुक्त या हमारे अगल बगल में होने वाले व्यवसायों को हमने प्रमोट करने का प्रयास किया। और उसमें से लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन होने लगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एग्जैक्टली करता क्या है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हॉस्पिटल चलाता है या हाफवे होम चलाता है या क्लब हाउस चलाता है या एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है, क्या है क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस? तो ये कंफ्यूजन शुरुआत के हमारे ही सदस्यों ने ये क्रिएट किया था। ये पहला कारण। दूसरा कारण, यानी हमको शुरुआत के दिनों में यानी 1939 से लेके 1950 के पीरियड में बहुत सारा मीडिया अटेंशन मिला। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, रेडियोस, टेलीविजन एए के बारे में काफी ज्यादा बातचीत करते थे। तो एए की रिकवरी, इट वाज लाइक अ मिरेकल। लोगों को बड़ा सरप्राइज लगता था, बड़ा मिरेकल लगता था कि यार क्या बात है, मतलब शराबियों के साथ में बात करके एक दूसरे को मदद करके इतना समय दूर रह सकते हो। तो और ये सभी जो है ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप में से निकले हुए हैं। यानी धर्म का इतनी अच्छी तरीके से किया हुआ उपयोग, धर्म का एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से भी कुछ वर्तमान पत्रों ने हमारे को बताने का प्रयास किया था। तो कुछ लोगों ने अपने धार्मिक व्यूज को प्रमोट करने के लिए या रिलीजन को एक के मदद से प्रमोट करने के लिए कि आप अगर शराब से दूर होना चाहते हो तो आप हमारे सेक्ट में आ जाओ, हमारे चर्च में आ जाओ, आपको फायदा होगा। इस प्रकार की भी सिचुएशंस और वर्तमान पत्रों में भी इस प्रकार के कुछ आर्टिकल छपने लगे और बिल डब्ल्यू को ये बड़ी धोखे की निशानी लगने लगी कि ये एक्चुअली स्पीकिंग रिलीजन का और एए का कोई भी संबंध नहीं होते हुए भी ये संबंध जोड़ा जा रहा है। और तीसरा था वो एए को जोड़ा जा रहा था सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स के साथ में। यानी समाज में जो भी परिवर्तन लाना है, तो ये जो 12 तत्व है, 12 स्टेप्स हमारा जो प्रोग्राम है, ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम कहीं पर भी लगाया जा सकता है और समाज के कई सारी समस्याओं के ऊपर इसका इलाज हो सकता है। इस प्रकार के आर्टिकल्स, इस प्रकार के कुछ लोगों ने प्रयास भी करके देखे। आप जानते हो कि इसी में से ये 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम बहुत सारे कारणवश हो गया और उसमें से कई सारे फेलोशिप्स का जन्म हुआ। लेकिन उसकी जो पार्श्वभूमि थी कि इन्हीं 12 कदमों को अलग सामाजिक मुद्दों के ऊपर लगा के देखने का प्रयास कुछ लोग करते जा रहे थे। और बिल डब्ल्यू को ये रेड लाइट दिखाई दे रहा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्राथमिक उद्देश्य रह जाएगा बाजू में और हमारा नाम जुड़ जाएगा अलते सलते भलते इस सब चीजों में, और हमारे जो मेंबर्स है वो दे विल गेट कैरिड अवे, वो लोग जो है वो बहक जाएंगे। तो ये 3 प्रमुख कारण थे जो 1939 से लेकर 1945 तक बिल डब्ल्यू ने जो देखे, जहां से ये 10वें ट्रेडिशन का बर्थ हुआ। तो चलो चौथा सवाल देखते हैं। What would AA be without this tradition? Where would I be? ये तो मतलब हमारे सबके लिए जानने के लिए है कि अगर ये नहीं होता तो हम लोग हर अलग अलग चीजों के साथ में जुड़ गए होते और AA का बहुत बड़ी मात्रा में डाइल्यूशन हुआ होता। तो इसका तो हर एक जन अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, तो इसे छोड़ देते हैं। 5वां सवाल है, डू आई ब्रीच दिस or any of its supporting traditions in subtle, perhaps unconscious ways? यानी क्या मैं ये या इससे जुड़ी हुई बाकी जो ट्रेडिशंस है, ये ट्रेडिशंस को जाने अनजाने में मैं तोड़ता हूं क्या?
तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमने सभी ये गलतियां की हुई है और अभी भी जाने अनजाने में करते हैं। कल अगर आकर आपको कोई सवाल पूछेगा तो अभी आप पहली दफा सोचेंगे कि भाई, अरे यार, ये तो 10वीं ट्रेडिशन में कल ही सुना था मैंने कि मैं इस प्रकार का मत नहीं दे सकता हूं। तो अभी हम जान गए हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग फ्रीली अपना मत देते आए हैं और ये ट्रेडिशन का भंग करते आए हैं। छठा सवाल यह है, हाउ कैन आई मैनिफेस्ट द स्पिरिट ऑफ दिस ट्रेडिशन इन माय पर्सनल लाइफ आउटसाइड एए एंड इनसाइड ए। यानी मेरा जो प्राथमिक उद्देश्य है उसको छोड़कर बाकी झमेले में नहीं पड़ना। ये यूनिटी के लिए सिर्फ ए ग्रुप में नहीं, बल्कि मेरे फैमिली में भी, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मेरे काम की जगह पे, हर जगह पे ये सच नहीं है क्या कि अगर मैं रिलीजन, पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म ये जैसे मुद्दे के ऊपर बात नहीं करूं तो कोई भी झगड़ा, बड़ा झगड़ा नहीं हो सकता है। और हमारी जो दोस्ती है, जो कई बार आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पुराने पुराने दोस्तों के बीच में भी झगड़े होते हैं, या कोई भी रिलीजन और माइनॉरिटी का मुद्दा लेकर अच्छे अच्छे लोगों में झगड़े हो जाते हैं। ये आपने देखा है, आपने सबने अनुभव किया है। तो क्या ये मैं अपने अनुभव, अपने बाकी अनुभव में भी नहीं कर सकता हूं क्या? और अंतिम सवाल यह है कि शुड द मीटिंग सेक्रेटरी इंटरवीन टू रिमाइंड ए मेंबर्स अबाउट दिस ट्रेडिशन इफ अ मेंबर स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग वन पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर टू अदर्स और फेवरिंग अ रिलीजन ओवर अदर्स। तो क्या आपके समूह में अगर कोई इस ट्रेडिशन का भंग कर रहा होगा तो क्या आपके समूह के सेक्रेटरी ने उसे रोकना चाहिए? अगर कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा होगा या रिलीजन के ऊपर टिका कर रहा होगा तो सेक्रेटरी ने क्या उसे रोकना चाहिए या नहीं? ये अपने आप के लिए विचार करने के लिए और ग्रुप इन्वेंट्री के लिए ये सवाल है कि नॉर्मली एक सेक्रेटरी कंफ्यूज हो जाता है और समझ में नहीं आता है उसको कि अगर सीनियर मेंबर इस प्रकार की बात कर रहा है तो इसको रोके या नहीं रोके, उसका अधिकार है या नहीं। तो ये अधिकार, ये ग्रुप इन्वेंट्री वाला टिपिकल सवाल है। ये अधिकार सेक्रेटरी को दिया जाता है कि खाली ये नहीं, बल्कि कोई भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ट्रेडिशन का भंग होते हुए कोई स्पीकर के जरिए या किसी और व्यक्ति के जरिए होते हुए दिख रहा है तो उसे रोकने का उसे पूरा अधिकार होता है। तो चलो, ये 7 जो सवाल है इनके थ्रू हमने समझने का प्रयास किया कि ये ट्रेडिशन का मेरे वैयक्तिक जीवन में और मेरे समूह जीवन में मैं किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इस ट्रेडिशन के ऊपर, ट्रेडिशन 10 के ऊपर का जो भी चर्चा है ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है, लेकिन आई एम श्योर हम में से कईयों के पास में इसके अनुभव होंगे या किसी को अगर कुछ सवाल होगा तो अभी हम इसके आगे ले सकते हैं। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या अनुभव शेयरिंग करना है, या अनुभव भी कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ राहुल, हाँ बोलिए। हाँ, राहुल शराबी। देखो, मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ, थोड़ा कोई पूछता नहीं यार, कोई पूछा करो। तो एक सवाल आया था कि हम अगर ये ट्रेडिशन का तंतोतंत पालन करते हैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस को चलने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम तो अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने मीटिंग्सों में तो बहुत ज्यादा ओपिनियन देते हैं, यानी लोगों को कॉन्शियस ही नहीं रहते लोग कि भाई मैं जो शेयरिंग कर रहा हूँ, जैसा अभी बहुत सारा ऑडियो वीडियो ऑनलाइन बहुत अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग चल रही है, तो कोई भी किसी को कोई वीडियो भेज देता है तो वो तो नया आदमी तो अल्कोहलिक एनोनिमस ही ये बोलता है, ऐसा समझता होगा। और जैसे कोई बहुत सारी, अभी मैंने देखा है कि जो एन चार्ली की किताब चलती है वो, और तो ये कैसा है कि अगर ये हम उससे उल्टा, उससे फायदा हो रहा है कि भाई वो आदमी को कुछ, जो नया आदमी आ रहा है उसको कुछ ना कुछ समझ रहा है, वो कैसेट के वजह से या अपने तरीके से लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम लेके उसको डेवलप कर दिया है, और वो लोग न्यू कमर की मदद के लिए, अच्छे विचारों के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये ट्रेडिशन का पालन करते हैं, अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, तो नुकसान है ना नए आदमी के लिए। तो ये कैसा अरे है, भाई, कंट्रोवर्सी। राहुल एक मिनट। जो एंड चार्ली ए मेंबर्स है और वो ए के ऊपर ही शेयरिंग करते हैं।
एए का शेयरिंग एए के मेंबर को भेजना ये एए के बाहर का विषय नहीं है, ये एए के अंदर का विषय है। ये ट्रेडिशन एए के बाहर के विषयों के बारे में है। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि भाई शेयरिंग में हम ओपिनियन दे सकते हैं कि अपने अनुभव के साथ, यानी सामने अरे वाले को तो ऐसा शेयरिंग का लगता है ओपिनियन दे अल्कोहलिक। सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि आपने राहुल का शेयरिंग सुनना चाहिए इस विषय के ऊपर। वो तो एए के अंदर का हाँ, मामला है ना। अंदर का मामला है, आउटसाइड इशू है। हाँ, हाँ, एए के लेकिन वो बाहर के ओपिनियन, विषयों के ऊपर हमने मत नहीं देना है। अच्छा ओपिनियन बाहर नहीं देना है, बराबर, अंदर। एए ओके के बाहर के विषयों पर मत नहीं प्रदर्शन करना है। रिलीजन, पॉलिटिक्स, ओके। सोशल रिफॉर्म ऐसे विषयों पर नहीं बात करना है। एए के अंदर अच्छा। हम लोग चाहे वो विषयों पे बात कर सकते हैं, शेयरिंग सर्कुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ। और कोई? किसी का कोई अनुभव? यस, सूरत। सूरत एससी। अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। अ, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम बापू है और मैं एक शराबी हूँ। हाय बाप। हाँ। अभी जो हमारा ये 10वीं ट्रेडिशन के बारे में चल रहा था, अभी इस सुनने के बाद अभी पता चला है कि बाहरी विषयों पे हमें कोई हमारा मत नहीं देना है। लेकिन अभी बहुत बहुत सारे यहाँ पे मीटिंग में कोई पूछता है कि अच्छा रिहाब कौन सा है, अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो हम बताते हैं कि ये रिहाब अच्छा है। यानी कि हम अ, बहुत सारे बार ट्रेडिशन का वायलेशन करते हैं। लेकिन अभी इस सुनने के बाद समझ में आता है कि हम ये इसके बारे में कम से कम मीटिंग के अंदर हम बात नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू बापू। लेकिन बापू मैं इसके आगे का भी आपको बताऊं, अगर आपने इंटर ग्रुप एंड सेंट्रल ऑफिस गाइडलाइंस पढ़ी हुई है तो उसके ड्यूटीज में एक ड्यूटी ये भी आता है कि लोकल हॉस्पिटल्स और रिहैब सेंटर्स के कांटेक्ट नंबर्स रखना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई पीड़ित शराबी के फैमिली मेंबर्स आपको पूछते हैं, अरे भाई हॉस्पिटल में भर्ती तो करने के लिए कोई हॉस्पिटल तो बताओ जहां पर शराबियों को ट्रीटमेंट होती है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल ठाणे है तो मैं उनको कोई खास नहीं बताऊंगा कि आपने इस हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी। मैं ये बताऊंगा कि आपको डी एडिक्शन की सेवाएं है या डिटॉक्सिफिकेशन की सेवाएं है, ये 8-10 हॉस्पिटलों में मिल सकती है। इन सभी के नंबर्स ये दिए हुए हैं। आपको जो सुटेबल लगेगा आप बात कर लीजिएगा और आपका निर्णय लीजिएगा। तो समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन देना और रेकमेंड करने में अंतर है। अगर कोई मीटिंग में आपको पूछता है कि कौन से रिहैब सेंटर में भर्ती करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि हम ये रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अगल बगल एरिया में ये 7-8 रिहैब सेंटर्स है, उनके नंबर्स आपको चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। आप खुद देख के आपको क्या सुटेबल लगता है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। यानी इंफॉर्मेशन देना और रिकमेंड करना, इसमें अंतर है। हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे को मालूम नहीं कौन सा रिहैब, तुमको क्या, हमको खाली ए के बारे में मालूम, ऐसा नहीं। इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन रेकमेंड नहीं करते। हम किसी को भी एंडोर्स भी नहीं करते और अपोज भी नहीं करते। हम हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है और वो बहुत बुरा है, वहां तो मारते हैं, ये सब हम लोग नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं ये सब रिहैब सेंटर्स है और ये इनकी जानकारी है, आपको जो ठीक लगेगा आप देख लीजिए। और आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, गूगल रिव्यूज होते हैं और साइट्स होती है, वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है उनको जानकारी प्राप्त करने के हेतु।
तो वो उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। दोस्तों, कोई और सवाल या कोई शेयरिंग, कोई अनुभव या कोई भी ट्रेडिशन के बारे में आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट आपके अंदर मन में खटक रही है या कुछ भी आज आप पूछना चाह रहे हो भूषण और लक्की जी से, कोई समस्या, कोई शेयरिंग शराब से रिलेटेड। नहीं तो अगर या तो अभी हम 11 ट्रेडिशन पे चले जाएं या फिर अगले हफ्ते मिले। 11वीं ट्रेडिशन ये थोड़ी सी लंबी भी ट्रेडिशन लंबी। है और काफी डिटेल वाली ट्रेडिशन है। तो अगर करना है तो हम लोग बेटर है नेक्स्ट इसको करना बेटर रहेगा। अगर बराबर। किसी के ओके सवाल नहीं है तो वी कैन वाइंड अप मीटिंग अर्ली, ऐसा कुछ नहीं। ओके। ओके। एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आप बाकियों को दोस्तों, पूछ ले, 11वीं लेनी है तो हम पढ़ सकते हैं ओपिनियन, या तो अगर नेक्स्ट फ्राइडे करना है तो नेक्स्ट फ्राइडे कर सकते हैं, क्योंकि ऑड है, खाली 20 मिनट बचे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ना वो पूरी होगी तो फिर नेक्स्ट टाइम वापस रिपीट करना होगा। या तो देखो, एक कंप्लीट अनाउंसमेंट। नहीं होगी। तो मार्च 8 तारीख को दोस्तों 10 बजे से 2:30 बजे तक होली क्रॉस स्कूल परमिसेस में रिवाइवर ग्रुप की मिनी एल्काथॉन होने वाली है 10 बजे से 2:30 बजे तक। अगर आप अगर थाने में हो सकते हैं संडे सुबह 10 बजे से 2:30 बजे। तो चार इसी के साढ़े बारे चार में थोड़ा घंटे सा और बताना चाहूंगा कि आप थाने में नहीं भी हो तो भी आप इस अल्केथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग रिवाइवर ग्रुप में हाइब्रिड फॉर्मेट में अल्केथॉन कर रहे हैं। यानी कि फिजिकली भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और ऑनलाइन भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर स्पीकर सिर्फ थाने के नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से भी स्पीकर्स यहाँ पर होंगे। और ये अल्केथॉन का विषय है विजन 2035। यानी एए को ऑलरेडी 90 साल हो चुके हैं, अगले 10 साल में एए को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो आने वाले 10 सालों में हमने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम रिलेवेंट रहे, प्रोग्रेसिव रहे और ज्यादा से ज्यादा शराबियों तक ये संदेशा पहुंच सके। तो ये इसकी इस अल्केथॉन की थीम रहेगी। तो सभी लोग अवश्य जुड़िए। इसकी अनाउंसमेंट जो है वो बनेगी और सर्कुलेट भी होगी अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर। तो जो फिजिकली आ सकते हैं जरूर आइएगा, हम पार्टी करने वाले हैं, क्योंकि रिवाइवर ग्रुप के 42 साल पूरे हो रहे। लेकिन जो फिजिकली नहीं आ सकते हैं वो ऑनलाइन जरूर जुड़िएगा। लिंक्स हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आपको। तो चलिए मीटिंग को क्लोज करते हैं। मैं और अगले हफ्ते मिलते हैं अगले शुक्रवार को रात को 9 से 10:30 बजे, और हम ट्रेडिशन 11 पे चर्चा करेंगे। तो हम सैनिटी प्रेयर लेते हैं इंग्लिश में वी वर्जन पे। कृपया अनम्यूट कीजिए अपनी माइक। गॉड grant us the serenity Grant us the serenity to accept the things we cannot change, to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. and the wisdom to know the difference. Keep on in love, work it and work it. Thank you all. हिंदू का हमेशा वीजडम क्यों होता है ऐसा?
नहीं हम लोग वी वर्जन पे करते हैं ना, तो वी 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 समडी थर्ड लाइन पे इंसिस्ट करते हैं। पागल लोग हैं ये आप। हाँ, ये यहाँ के लोग सब पागल है। यहाँ पे जानबूझ के थोड़ी मीटिंग खत्म होती है, थोड़ा जोश आ जाता है, लोगों का बैटरी चार्ज होता है, तो थोड़ा मस्ती में आते हैं कुछ। अच्छा, चंदू Battery charge. सबका बंधु है वो। चंदू थैंक यू। चंदू राहुल नाम तो सुना होगा। यस। ओके गाइस, बाय, गुड ओके, नाइट। थैंक यू ऑल। यस Oh यस my God. ओके बाय बाय।